वेलकम स्टूडेंट्स इन द थर्ड लेक्चर ऑफ द लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर में हम सेट्स के रिलेटेड जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझ पाओ। एक एक करके हम सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली प्रॉब्लम में बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सेट्स, जस्टिफाई आवर आंसर। बेस्ड अपॉन आवर अंडरस्टैंडिंग हम डिसाइड करेंगे कि जो गिवन प्रॉब्लम सेट बना रही है या नहीं बना रही। वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर आल्सो। In the first problem, it is given that collection of all the months of a year beginning with the letters J. क्या ये सेट होगा? How many months are there? There are 12 months. If I represent this as a set A, how many months are there? There are 12 months in a year. First month January. It starts from J, so it should be a part of your set, क्योंकि हमें सारे वो वाले मंथ्स कंसिडर करने हैं जो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, जे से शुरू हो रहे हैं। नेक्स्ट मंथ इज February, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम F, it should not be a part of the set. Next is your March, it's not a part of the set. Then April, not a part of the set. May, not a part of the set. Then comes June. June is also starting from J, so it should be a part of the set. Then July, it should be a part of the set. Then is August, September, October, November, and December. There are only 3 months of the year which are starting from the set. So the collection of all the months of a year we can represent it in the form of the set. So what about this problem? Is it a set? Yes, this is a set. Second problem, the collection of most talented writers of India. Can we have any criteria based upon which we can decide the talented writer of India? There is no criteria. ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लें कि ये कौन टैलेंटेड है और कौन टैलेंटेड नहीं है। ये क्राइटेरिया वेरी कर सकता है, आपकी सोच में और मेरी सोच दोनों डिफरेंट हो सकती है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द सेट of India is not a, this is not a set. Clear? Next is a team of 11 best cricket batsmen in the world. Do we have any criteria? क्या हमारे पास कोई क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं? एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई एक बेस्ट हो सकता है और दूसरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई दूसरा बेस्ट हो सकता है। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी क्राइटेरिया, कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो ये मेरा not a set. This is not a set. Clear? The collection of all boys in your class. Can we collect the boys in a single set? Yes, there is a proper criteria. We can divide the class on the basis of the gender, so we can make a set of all the boys in your class. So is it a set? The answer is yes, this is a set. The collection of all natural numbers less than 100. What are the natural numbers less than 100? We will start from all numbers which are used to counting. जो काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। अगर मैं इनको एक सेट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ जी, yes, we can write the number as we need to write the number less than 100. We can move from कहां से लेके कहां तक? 1 2 3, हम 99 तक जा सकते हैं। क्या ये सेट होगा? Yes, this is a set. The collection of all novels written by the writer Munshi Premchand. Is it a set? We can collect सारे के सारे जो नॉवेल्स हैं जो राइटर मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, हम सारे के सारे सेट्स में रख सकते हैं, क्योंकि वो वाला जो नॉवल है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है वो किसी और ने नहीं लिखा होगा। देयर इज अ क्राइटेरिया टू सेपरेट द नॉवेल्स, सो दिस इज आल्सो ए सेट. Collection of all even integers.
collection of all even integers, will it form a set? क्या ये set बनाएगा? Yes. Even integers means multiple of 2, 2, 4, 6 and so on. We can write all the even numbers in the form of set. The answer is yes, it will form a set. Collection of all questions in this chapter, we can write the collections like कोई question number 1 है, question number 2 है, we can write all the questions within the braces, so it will form a set. This is also a set. Collection of more dangerous animals of the world, can we decide who is the most dangerous? क्या हमारे पास कोई रूल है जिसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सके? नहीं. क्राइटेरिया, कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर लें कि कोई एनिमल जो है डेंजरस है या नहीं है. अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, इट मींस दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, देयर इज नो, this is not a set, there is no well defined criteria basis on which we can write the elements or consider the elements as a set. अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है तो सेट नहीं है. अगर हम डिसाइड कर सकते हैं, क्राइटेरिया है, वेल डिफाइंड है, तो वो सेट है. अगर नहीं है तो सेट नहीं है. नाउ लेट्स डू द अनदर प्रॉब्लम. A is given to be a set whose elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6. We need to insert appropriate symbol. You know, first symbol, it means this belongs to. Element किसका पार्ट है? सेट का पार्ट है. सेकेंड सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर एप्सिलॉन को क्रॉस कर दें, ये सिंबल है हमारा नॉट बिलोंग्स टू. नॉट बिलोंग्स टू. अब अगर एलिमेंट सेट का पार्ट है तो बिलोंग कर रहा है, अगर वो सेट में नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा. सेट में एलिमेंट्स क्या है हमारे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्या ये 5 जो है सेट का पार्ट है? तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे? बिलोंग्स टू. 8 जो है वो सेट में नहीं है, इट मींस 8 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए. 0 इज नॉट इन द सेट, इट मींस 0 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट. 4 सेट का पार्ट है तो क्या लिखेंगे हम? 4 बिलोंग्स टू द सेट. 2 सेट का पार्ट है, सेट में है, 2 बिलोंग्स टू सेट. क्या 10 सेट में है? नहीं, क्योंकि एलिमेंट ऑफ द सेट्स कहां तक हैं? 1 से लेके 6 तक, 1 to 6. सो 10 इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेट. थंब रूल क्या है? अगर एलिमेंट सेट का पार्ट है तो वो बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा. अगर एलिमेंट सेट का पार्ट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल आएगा. Now let's move ahead to the next problem. Write the following set in the roster form. हम दोबारा रिकॉल करेंगे. रोस्टर फॉर्म क्या है? We need to write the element in the braces. braces में लिखेंगे separated by comma. सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी सेट का पार्ट होंगे हम लिखेंगे. जैसे सपोज ए बी सी अगर पार्ट है, आई विल राइट इट एज ए कॉमा बी एंड सो ऑन. बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे. दिस इज द रोस्टर फॉर्म. पहली प्रॉब्लम देखते हैं हम. ए इज गिवन टू बी ए सेट. कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? इट शुड, एक्स शुड बी इंटीजर. सेकेंडली, इट शुड लाई बिटवीन -3 and 7. Here it is given that -3 less than equal to, जो -3 है वो भी इंक्लूड होगा. अब -3 से लेके <7 तक कौन कौन से एलिमेंट हैं? -3, देन -2, देन -1, 0, देन 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्या 7 आएगा? नहीं, बिकॉज वी नीड टू कवर ऑल द एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली लेस देन 7. क्या ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं? यस, ऑल आर इंटीजर्स. सो इन द रोस्टर फॉर्म, हाउ यू विल राइट द सेट ए? सिंपली आई विल पुट ऑल द एलिमेंट्स विद इन द ब्रेसेस. कैसे लिखेंगे? कौन कौन से एलिमेंट है? -3, -2, -1, then 0, then 1, then 2, then 3, then 4, 5
and 6. This is the roster representation of your first problem. Second problem में B is given to be a set. It's a collection of all the natural numbers less than 6. All natural numbers. नंबर नेचुरल कहाँ से शुरू होते हैं हमारे? 1 से. नंबर यूज फॉर काउंटिंग आर नेचुरल नंबर्स. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? कहाँ से शुरू होंगे? 1. क्या 1 इसका पार्ट होगा? यस, इट्स लेस देन 6. देन 2, इट इज आल्सो लेस देन 6. 3, ये भी 6 से छोटा है. 4, this is also less than 6. 5, this is also less than 6. क्या 6 इसका पार्ट होगा या इससे आगे वाले? नहीं. We need to collect all the elements जो किससे छोटे हैं? 6 से. So इसका सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 1, 2, 3, 4 and 5. Now comes to third example. C is given to be a collection of those 2 digits natural numbers such that their sum is 8. ऐसे वाले दो नेचुरल नंबर्स मींस हमने यूनिट और टेंस प्लेस पे वो वाले नेचुरल नंबर कंसिडर करने हैं इस सेट में जिनका सम क्या होगा? 8. और वो क्या रहने चाहिए हमारे? 2 डिजिट्स. 2 डिजिट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे? 11 से. 11 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं हम? 99 तक सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं. पर हमें सेट में कौन से नंबर चाहिए? जिनका सम क्या हो? 8. अगर टेंस पोजीशंस पे 1 है, यूनिट पोजीशंस पे क्या कौन सा एलिमेंट लें? सम 8 होता है 7. अगर 10 पोजीशन पे 2 है, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट लें? 26. अगर 3 है तो दूसरी तरफ क्या लेना पड़ेगा? 5. अगर 4 है तो दूसरी तरफ भी क्या लेना पड़ेगा हमें? 4. अगर 5 है दूसरी तरफ क्या लेंगे हम? 3. अगर 2 है, सॉरी 6 है तो दूसरी तरफ हम क्या लेंगे? 2. अगर 7 है तो दूसरी तरफ क्या आएगा? 8. क्या इसके अलावा कोई और नंबर है? यू कैन चेक. देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर. कोई और नंबर नहीं है जिनका सम क्या हो? 8 हो. तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ये सारे के सारे वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनका सम क्या है? 8. आई होप this is clear to you all. Next is D is a collection of all those elements. दो conditions है. It should be prime which is a divisor of 60. All the prime divisors of 60 are in the set. Now easily हम find out कर सकते हैं prime divisors के लिए. हम 60 को break कर सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? 30, then 10, then 5, 2 भी लिख सकते हैं. प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स जो 60 को डिवाइड कर रहे हैं? 2, 3 एंड 5. सो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे? सेट डी द रोस्टर फॉर्म विल हैव कौन कौन से एलिमेंट? 2, 2, 3 एंड 5. दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम. Then come to next problem. Set of all letters in the word trigonometry. हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि while writing the elements in the set there is no need to repeat the elements. Repetance is irrelevant. तो कैसे लिखेंगे? पहला अल्फाबेट T, दूसरा R, तीसरा अल्फाबेट I, then G, then O, then N. नेक्स्ट क्या है? O. और ऑलरेडी हमने O लिखा हुआ है. देयर इज नो नीड टू राइट O. O के बाद M. M नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लिखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट इज E. E अभी नहीं लिखा हमने तो लिखेंगे. देन T. ऑलरेडी हमने T लिखा हुआ है तो देयर इज नो नीड टू राइट T इन दी सेट. R भी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. देयर इज नो नीड टू राइट R इन दी सेट. Y. Y हमने नहीं लिखा हुआ.
तो y हम सेट में लिखेंगे. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम में द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, वन बाय वन हम लिखेंगे. B, E, T. नेक्स्ट वर्ड इज आल्सो T. ऑलरेडी वी हैव रिटन T इन दी सेट, ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे. E भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे. R हमने नहीं लिखा तो R लिखेंगे. तो इस वर्ड की सेट रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी? B, E, T एंड R. अगली कुछ प्रॉब्लम्स में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले हमने सबसे पहले देखना है इसकी प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर रहा है. अगर आप पहली प्रॉब्लम को देखोगे 3, 6, 9, 12, ये कुछ नहीं है, 3 का टेबल है. अगर 3 का टेबल है, हाउ वी कैन राइट द दिस सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म? रिप्रेजेंट करेंगे x. x क्या है? एलिमेंट. कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या है? x इज, मे आई राइट इट एज 3 इंटू n. n क्या है? मेरा एक नेचुरल नंबर है. अगर n की वैल्यू 1 है तो यहां से क्या आ जाएगा? 3. अगर n की वैल्यू 2 है, मेरे को सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा 6. अगर n की वैल्यू 3 है, थर्ड एलिमेंट मिलेगा 9. अगर n की वैल्यू 4 है तो फोर्थ एलिमेंट मिलेगा 12. हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट है. इट मीन्स हमें n के ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी. एक तो n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को. दूसरा, n की वेरिएशन क्या, कहाँ तक एलिमेंट ले सकते हैं? जहां तक हमारे पास 3 से लेके 12 तक सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाएं. कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे हम? 4 तक. दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ योर प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं. दूसरी प्रॉब्लम के एलिमेंट्स को जज कीजिए कैसे दिया हुआ है. क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 1. दूसरा क्या है? 4. क्या इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2? 8. 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3. 16 2 पावर 4. देन 32 2 पावर 5. सारे के सारे एलिमेंट्स किसकी पावर में आ रहे हैं? 2 की. सो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसे मैं ए के साथ रिप्रेजेंट करूं सेट को, तो कैसे आएगा? सारे के सारे एलिमेंट x. प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? x किसके इक्वल आ रहा है? 2 की पावर n. n क्या है? मेरा एक नेचुरल नंबर. 1 2 3 4 5. क्या यहां तक जाएंगे हम? मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? 5 तक. सो दूसरी कंडीशन क्या इंपोज करेंगे? इट शुड बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर. और n कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? 1 से लेके 5 तक. तो ये आ जाएगी मेरी दूसरी प्रॉब्लम की सेट बिल्डर फॉर्म. तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं. एलिमेंट्स क्या है? 5, 25, 125, 625. अगर मैं इसके एलिमेंट्स को लिखूं तो कैसे लिख पाऊंगा? इज इट 5 रेज टू पावर 1? 5 की पावर क्या है? 2. 5 की पावर 3. देन 5 की पावर 4. दिस इज योर 625. सो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से आएगा? इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स x सेपरेटेड बाय कॉलन. x की वैल्यू कैसे ले रहे हैं हम? 5 की पावर n. बट n के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. n किसको बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर को. और इसकी वेरिएशन कहाँ से लेके कहाँ तक मूव कर रहे हैं हम? 1 से लेके 4 तक. ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे थर्ड प्रॉब्लम को सेट बिल्डर फॉर्म में. नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर आप इसे देखोगे, ये क्या है? 2 4 6. इट्स अ टेबल ऑफ 2 ऑल इवन नंबर्स. कितने एलिमेंट्स हैं? देयर इज नो लिमिट. अगर कोई लिमिट नहीं है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स n. 2 टाइम्स n. इट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 2. n क्या है? n के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है? इट बिलोंग्स टू n. We can write it as, or on the other way we can write it as x such that x is an even natural number. This is the other way to represent this. Or simply we can write it as x is equal to 2n. n किसको belong करेगा? Natural number
कैपिटल एन को बिलोंग करेगा। एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर, कैसे लिखा जा सकता है? क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट एलिमेंट क्या है 100, अगर मैं इसे लिखूंगा इसके एलिमेंट्स को, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 1 की पावर 2, सेकेंड एलिमेंट इज 2 पावर 2, थर्ड एलिमेंट इज 3 पावर 2, लास्ट क्या आ गया मेरे पास, दिस इज 10 पावर 2। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे के सारे x सच दैट x किसकी पावर आ रहा है, x इज n पावर 2, बट एक रिस्ट्रिक्शन है, n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 2 3, लास्ट वैल्यू क्या है n की 10, सो आई शुड इम्पोज हियर ए रिस्ट्रिक्शन, कैसी रिस्ट्रिक्शन, n वेरी करेगा मेरा कहां से लेके 1 से लेके 10 तक, अगर 1 से लेके 10 तक वेरी करेगा तो मेरे सारे के सारे एलिमेंट कहां से लेके कहां तक कवर हो जाएंगे, 1 से लेके 100 तक। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम। होप इन प्रॉब्लम्स के बाद आपका टॉपिक ज्यादा क्लियर हो गया होगा। इससे अगले लेक्चर में हम और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe my channel and do give comments in the video so that we can improve the content of this series. Thank you. Have a good day.